So सबसे पहले तो बताओ what is the update on practice? So for me, I didn't get much time, so I wasn't able to get to the week two problems. I finished the week one. I was able to submit them, and I just have the threesome one left. I didn't have much time, so I only got a few done. Yeah, same here. When you said to finish all the week one, submit all those first, so I did that. I also have three some left. It's taking me a little bit longer to understand, so I feel like that's the reason. But I feel like I have more time today and tomorrow. I'll get the three some submitted, and then I'll start doing week two problems. Okay. Oh, So and we watched the two videos that you sent us. The good. binary. So The understood the concept about Yeah, I binary did. I system. didn't know some of those things. Yeah, yeah, Yeah. So basically ज़्यादा difficult नहीं होगा, right? काफ़ी easy होगा समझना. Yeah, no. It yeah. was The easy two to videos were understand. easy to understand. Yeah. So let's start today's session. Okay. तो आज हमें क्या करना है? PSA session and Number. yeah. So today we'll be doing number theory, right? Huh. Yeah. Okay. So today is session 5, right? And we will be starting with number theory. अभी नंबर थ्योरी का मतलब एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नंबर थ्योरी? इट इज काइंड ऑफ मैथ्स. वी विल बी यूजिंग दैट. Huh. We'll be seeing the application of some mathematical concepts in competitive programming or problem solving. Okay. So basically today we will be talking about a lot of things, right? Like what are divisors, what are factors, okay? What are Huh. multiples. Then we will be talking about what are primes, what how to calculate a lot of primes. Okay. Then we will be talking about GCD, how to calculate LCM. So do you know about GCD, HCF, greatest common divisor or highest common factor? Yeah. This is lowest common multiple, Yeah. right? तो इसको मतलब एक बार देखेंगे, अगर नहीं भी आता तो कोई दिक्कत की बात नहीं है. Yeah. Huh. ठीक है. देन आज के लिए तो इतना ही, मतलब आज और फिर कल बाकी का देखेंगे. तो बेसिकली फर्स्ट मतलब लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन विद अ वेरी वेरी बेसिक प्रॉब्लम. क्योंकि प्रॉब्लम इज गिवन एन इंटीजर n. ठीक है. कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिजिट्स इन n. So how can we do this? Like given Just n, we just need to count the number of digits in n. For example, if the input is 1432, then the output should be 4. If the input is 987, then the output should be 3. समझ गए? So basically, how can we calculate? can't you just like go through the integer like using a for loop and then as when you like every single digit you just increment the counter? But the point is this is integer and this is not a string, right? So you cannot go through each digit. मतलब ऐसे थोड़ी for loop ऐसे थोड़ी लग जाएगा. I mean, let's say if we have an integer, right? Can we So not can we not convert it to a string like using the toString method? that's one way. But Yeah. so one way can be कि जब तुमने ये integer लिया, let's say if you have any integer 1473, then convert it into a string which is nothing but two string of n, and then just print s dot size, right? Yeah. Okay, that's good. But Wait, can't uh, can't you also like wait? I saw this in the video. They were like dividing the number by Two, I think. Yeah. 2 or 10, I think. Um, hmm. Basically then we it shows like one, Oh, two, it three, was four as in the digits or yeah, it something. was in the table. Like they showed two Yeah, tables you and then of divide the course number by 10, and then that will give you the remainder will give you the number of digits. yeah, +1, I think. I don't know. ओके. Something like ठीक है that. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं. अच्छा ये बताओ सबसे पहले, ये क्लियर है कि नहीं? Huh. Uh-huh. ये तो क्लियर ही होगा, राइट? इसमें तो कुछ नहीं किया हमने, n को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके Yeah. स्ट्रिंग का साइज Yeah. प्रिंट कर दिया. मतलब पॉइंट इज यहाँ पे हम फालतू एक स्ट्रिंग बना रहे हैं, राइट? तो ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए हम इसको हटा देंगे. नाउ द अदर मेथड कैन बी, अब अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे इसको, तो बेसिकली अगर हमें 1432 दिया हुआ है और हमें इसके डिजिट्स काउंट करने हैं, तो हम देखो क्या करेंगे.
अभी ये 1432 है राइट, कुछ नंबर है। लेट्स से कि हाँ इसके हर एक डिजिट तुम्हें प्रिंट भी करना होता है। मान लो प्रॉब्लम ये होता कि अगर 1432 है ना, तो तुम्हें ऐसे करके प्रिंट करना है 2341, मतलब इसके जो डिजिट्स हैं वो इस ऑर्डर में प्रिंट करना है। लेट्स से मान लो ये प्रॉब्लम होता, राइट। तो व्हाट वी कैन डू इज कि देखो ये 1432 है राइट। अब ये कौन से हाँ बेस में लिखा हुआ है, लाइक हम कौन से बेस में नंबर्स पढ़ते हैं, बेस 10 में राइट। Yeah, based बेस on 10 में पढ़ते हैं राइट। हमें पता है कि ये जो है वो 10 to the power 0 है, ये 10 to the power 1 है, yeah. ये 100 है, मतलब 10 to the power 2 है, और ये 10 to the power 3 है राइट। हमें ये पता है। हाँ इट इज़ नथिंग बट कि 1432 को तुम 1 into 10 to the power 3 प्लस 4 into 10 to the power 2 प्लस 3 into 10 to the power 1 हाँ प्लस 2 हाँ ऐसे लिख सकते हैं ना 1432 को, हाँ हाँ बराबर। हाँ है ना। तो ये बेसिकली हम बेस 10 नंबर्स की बात कर रहे हैं अभी। द पॉइंट इज कि अगर तुम्हें किसी भी नंबर के डिजिट्स निकालने हैं ना, तो उसका तरीका ये होता है कि तुम इसको 10 से रिमाइंडर ले लो। अगर 10 बेस 10 हाँ नंबर है तो इसका डिजिट्स निकालना है, तो अगर तुम 10 से अभी रिमाइंडर लोगे तो क्या आएगा बताओ। 10 से अगर हम रिमाइंडर लेंगे तो क्या आएगा इसका। 1 4 हम्म 1430 है। मान लो 42 होता तो 10 से रिमाइंडर लेते क्या आता। 2 2, क्योंकि 40 इज डिविजिबल बाई 10, तो प्लस 40 प्लस 2 लिख हाँ सकते थे। तो इसको भी तो ऐसे so कर here सकते हो also ना, it will be वन 2. Oh, करेक्ट 1430. So वन yeah, फोर थ्री 2. जीरो प्लस टू ऐसे लिख सकते हो ना। Yeah, 2. Yeah. तो बेसिकली द पॉइंट इज कि जब हम 10 से रिमाइंडर लेंगे तो लास्ट डिजिट आ जाएगा, हाँ इजंट इट। हमेशा लास्ट डिजिट हम्म, आएगा। आ yeah. रही बात समझ में। तो हमने Yes. 2 तो प्रिंट कर दिया, 2 इज द लास्ट डिजिट। अब हम क्या चाहते हैं कि ये Hmm. 2 यहाँ से गायब हो जाए। अगर ये 2 को यहाँ से गायब करना है तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन डिवाइड दिस नंबर बाय 10। डिवाइड करोगे तो क्या हाँ होगा, जैसे मान लो कि 42 को 10 से डिवाइड करोगे, इंटीजर डिवीजन, अज्यूमिंग इंटीजर डिवीजन, तो क्या होगा, 4 आ जाएगा ना, ये 2 हट जाएगा 4 with हाँ remainder 2. राइट। मतलब रिमेन इंटीजर डिवीजन की हम्म, बात कर रहे हैं तो रिमाइंडर तो कुछ बचेगा नहीं। बेसिकली अगर हम इस नंबर को हम्म, 10 से डिवाइड कर देते हैं इंटीजर Now डिवीजन, it's 140 plus 3, so it's a 3. हम्म, yeah 143 yeah राइट, 143 बचेगा ना। yeah. देन अगेन डू द सेम थिंग, इस फिर से अब तुम्हें ये वाला हम्म, डिजिट चाहिए ना, तो मॉड Hmm. 10 फिर ले लो, तो 3 आ गया। yeah फिर definitely, इसको हाँ 10 से डिवाइड कर दो तो 1 4 हो गया, फिर मॉड 10 ले लो हम्म, तो 4 आ 4. गया, फिर 10 से डिवाइड कर दो तो 1 आ जाएगा, हम्म, फिर मॉड 10 ले लो तो 1 आ गया, फिर 10 से डिवाइड कर दो तो क्या आएगा, 0। 0 आ गया तो यहीं पे रुक जाओ, बस यू डोंट नीड टू डू Yeah. एनीथिंग। exactly, समझ गए। So हाँ basically the point is we will keep on dividing this number by 10 until it becomes 0. तो बेसिकली हम्म, मान लो अगर कोई तुमसे हर डिजिट के बारे में पूछता है तो एवरी टाइम जस्ट टेक द रिमाइंडर विद 10, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि इफ़ वी हैव अ बेस 10 नंबर एंड इफ वी टेक द रिमाइंडर विद 10 विल गेट द लास्ट डिजिट। तो 1432 है, हाँ लास्ट डिजिट कैसे निकालेंगे, बस बेस 10 मतलब रिमाइंडर 10 ले लो तो 2 आ गया। उसके बाद फिर इसको 10 से डिवाइड कर दो, उससे क्या होगा, ये 2 गायब हो जाएगा तो 143 बचेगा। फिर ये 3 निकालना है ना, तो इसको फिर से रिमाइंडर कर लो 10 से, तो 3 आ Hmm. गया। फिर इसको 10 से डिवाइड कर दो तो 3 गायब हो जाएगा, बिकॉज हमने 2 और 3 प्रिंट कर दिया ना, तो देर इज़ नो नीड नाउ ऑफ 2 और 3। हम डिवाइड फिर करेंगे 1 4 हो जाएगा, ऐसे करके हम प्रिंट कर देंगे। तो इसका कोड भी काफ़ी सिंपल रहेगा। इसका कोड कुछ नहीं Yeah. करना है, वाइल n इज़ ग्रेटर देन And 0, 0. what you need to do is print n mod 10, or you And can more say 10. what is the last digit, है ना। तो इट इज़ हम्म, n mod 10। ऑलवेज राइट कोड की किसी दूसरे को समझ में आ जाए, राइट। जैसे ये वेरिएबल में लास्ट डिजिट तुमने रख दिया, अब इस लास्ट डिजिट को प्रिंट yeah करो, ठीक है। उसके बाद व्हाट वी नीड टू डू इज जस्ट डिवाइड दिस n बाय 10। गॉट द पॉइंट, दैट्स इट। yes इफ n इज 1473 तो ये देखो 1473 राइट। कुछ भी डालोगे यहाँ पे, मतलब लेट्स से कि यहाँ पे हम 14920 डाल देते हैं, तो 14920 मतलब उल्टा प्रिंट होंगे, राइट, ऑब्वियसली। हाँ. Hmm. तो ये लूप समझ में आ गया, राइट, ये तो कहा है ना। हाँ. तो व्हाट इज द हाँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस, व्हाट हाउ मेनी ऑपरेशंस वी विल बी डूइंग। 1. or 1 ओ ऑफ 1 बाय, अगर मान लो n मैं बहुत ज़्यादा बड़ा दे दूँ फिर। um द पॉइंट इज हाउ मेनी ऑपरेशंस वी आर डूइंग इज नथिंग बट द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर, राइट, द नंबर ऑफ Yeah, डिजिट्स इन एन so इंटीजर। तो then if we have a number n which is in base 10, तो इसमें कितने डिजिट्स होंगे, देखो 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 यहाँ पे। and mod. So hmm, अगर 1 है तो इसमें कितने डिजिट है, 1 है। 1. 10 है तो कितने डिजिट होते हैं, 2। 100 है हम्म, तो कितने डिजिट होते हैं, 3. 3। 3 1000 है तो कितने डिजिट होते हैं, 4 4। तो बेसिकली द पॉइंट इज अगर हम इसका लॉग लेंगे
1 का 10 के साथ, तो क्या आएगा 0। लॉग ऑफ 1 हाँ इज 0 विद एनी बेस, तो बेसिकली करेक्ट 0 प्लस 1 यहाँ पे आ गया। फिर लॉग ऑफ 10 लेंगे विद 10, 1 आएगा, 1 प्लस 1 यहाँ पे आ गया। सिमिलरली यहाँ पे 2 लॉग आएगा तो 2 प्लस 1। द पॉइंट इज फॉर अ पर्टिकुलर n द नंबर ऑफ डिजिट्स इन n विल बी log with base 10 of n plus 1. That's the basically हाँ we will be doing logarithmic operation where the base of log is 10. Got the point? या ठीक है ना। अगर तुम्हें याद हो यस तो हम बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में भी यही चीज़ करेंगे। यहाँ पे मॉड 10 ले रहे हैं ना बार बार, वहाँ पे मॉड 2 लिया करेंगे अगर बाइनरी बिट्स निकालने हैं ना हाँ तुम्हें। सेम ही चीज़ रहेगा क्योंकि वो बस बेस 2 में रहता है, ये बेस 10 में रहता है। ठीक है ना। तो बाइनरी में जब हम हाँ बात करेंगे तो जैसे अगर मैं तुमसे बोलूँगा कि किसी नंबर का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन निकालो तो तुम यही करोगे, यहाँ पे मॉड 2 लेते जाओगे, यहाँ पे 2 कर दोगे और 2 से ही डिवाइड करते जाओगे, तो वो नंबर का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन निकलता जाएगा। वो हम देखेंगे बाद में। ठीक है। So हाँ that's very basic concept, right? How we can count the number of digits in an integer without converting it to a string, right? अभी थोड़ा अब डिफिकल्टी बढ़ाते हैं अपनी डिस्कशन का। तो लेट्स टॉक अबाउट हाँ डिवाइजर्स ओके और मे बी फैक्टर्स। तो डिवाइजर्स और फैक्टर्स क्या होते हैं, एनीबडी? divisors. That's just like the numbers that can be divided by a number. So Like if 4 basically, divided with 2. no, basically if b divides a, ठीक है, if Hmm. uh, who joined right now? Arohi, Hello, Yeah, hello. I can't hear anyone. right now? we can hear You, you. yeah, you cut off. I couldn't hear like the last few. Arini, did you? Yeah, I can hear you. I can hear you perfectly fine. So I there can is. hear you now. I said like the last few minutes. So Did you hear? basically, did you get till this part? Till this much? Yeah. I just started this divisors and factors. Okay. Maybe basically there is some problem from your side because Arini was able to hear me. Okay. Yeah. Is everything good now for both of you? Yeah. Huh. Okay, good. So basically, I was discussing what do we mean by divisors or a factor. Okay. So basically, let's say if we know if B divides A, okay, it actually Huh. means कि B is a divisor of A. Correct. For example, Yeah. अगर मैं ऐसे बोलता हूँ कि 2 Okay. divides 10, it actually means कि 2 is a divisor or a factor of 10, correct? Yeah. बेसिकली Huh. 2 एक Yeah. डिवाइजर हुआ क्योंकि 2 completely डिवाइड्स करता है 10 को। Right. ठीक है। Huh. Huh. तो बेसिकली अगर हम देखें, इफ़ आई आस्क यू कि लेट्स से 10, तो व्हाट आर द नंबर, टेल मी हाउ मेनी डिवाइजर्स और टेल मी द डिवाइजर्स ऑफ 10। तो कौन कौन से होंगे डिवाइजर्स, बताओ 10 के। 1, 1, 2, 2, 5, 5, 10. 10. 1 to 5 10, right? So basically let's Huh. solve a problem. The problem is given n, print all divisors of n. Huh. How can we do this? सोचो। So You basically like check if the number. What will be the very very simple approach? सबसे पहले सिंपल अप्रोच से स्टार्ट किया करो सोचना। so So basically if I tell you कि let's we say know given that all n is numbers. 36, so print all the divisors of 36. So how will you print all the divisors of 36? So we know it has to be less than the actual number. So Hmm. we can go जो भी दिमाग में आ रहा है जल्दी we बताओ। can go through like all the numbers up to 36 and then see if it's mod, if mod that is equal to 0 or not. Good. Or That's if the remainder is 0. yeah. So basically we will go from 1, start from 1, go till n, right? And for Yeah. every number we will check if n mod The I number mod. is 0, then print I, isn't it? Yeah. That's the simplest solution, right? Yeah. So basically given n, okay, what we will do is from I1 I till n I plus plus, uh,
if n mod I is 0, then I'll print this I, right? Yeah. So let's see, if I provide Right. 36, then we are getting all the divisors, right? 1 to 36 सारे आ रहे हैं, 1 2 3 4 6 9 12 18 36. अच्छा, quickly tell me what is the time complexity here? 0 of n. O of n. When? O of n, right? क्योंकि we are doing n operations, right? Yeah, Mhm. correct. करेक्ट. अभी उसको ध्यान से देखो तुम. तो मैंने पूछा था कि व्हाट आर द डिवाइजर्स ऑफ 36. तो डिवाइजर्स ऑफ 36 क्या क्या आया था? 1, 2, 3, 3, 4, 4, 6, 12. 12, 18, 9, 12, 18, 36. राइट. अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 1 and 36 आर पेयर्स. व्हाई? बिकॉज 1 into 36 Because, is yeah, 36, right? Yeah. Then 2 Correct. 18 2 times into 2. 18 Yeah. is 36. Then 3 times 12 is 36. बेसिकली Yeah. ये दोनों भी पेयर हैं, फिर ये दोनों भी पेयर हैं, फिर 4 times 9 is 36, right? Yeah. And then 6 times 6 is Yeah. 36. Yeah. अभी थोड़ा और देखते हैं. मतलब बेसिकली द पॉइंट इज, हम तो एक एक करके चेक करें ना सारे डिवाइजर्स को, कि 1 है क्या, 2 है क्या, 3 है क्या, 4 है क्या. फिर 5 को चेक किया होगा, 5 तो नहीं है. 6 है, 7 पे चेक किया, नहीं है. 8 पे चेक किया, नहीं है. फिर 9 है डिवाइजर. फिर 12 आएगा, राइट? Yeah. फिर 18 आएगा, एंड फिर 36 खुद आएगा. अब अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो द पॉइंट इज कि हमें, जब हमने 1 को चेक किया ना कि क्या 1 36 का डिवीजर है या नहीं, तो द पॉइंट इज, इफ व्हाट आई एम सेइंग, इफ आई डिवाइड्स 36, ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि आई इंटू सम एक्स इज इक्वल टू 36, राइट? Yeah. इसका यही मतलब हुआ. Right. द पॉइंट इज, कैन वी कैलकुलेट, कैन वी से कि एक्स भी डिवाइड करेगा 36, विच इज नथिंग बट 36 बाय आई. अगर आई Yeah, तुम्हें पता है Yeah. तो 36 बाय आई भी डिवाइड करेगा, राइट, एक्स को. Yeah, Yeah. 36 also divides So it, the yeah. point is कि if we X is know, also divided. हाँ good. So if we know 1, we also know information about 36. क्योंकि अगर ये i है तो हमें n by i भी तो पता चल गया ना. If we know a particular i, then n by i भी पता चल गया, right? Correct. Similarly, Yes. if we know 2, we also know about 18, correct? 18. Then if we know about 3, we also got to know about 12. If we know about 4, we also got to know about 9. If we know about 6, we also know about 6. The point is, there is no need to go further. Why? क्योंकि ये जो पेयर्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं. देखो, 9 into 4 ऑलरेडी आ चुका है, 12 into 3 ऑलरेडी आ चुका है, Yeah, it's repetitive. 18 Yeah. into 2 ऑलरेडी आ चुका है, 36 into 1 ऑलरेडी आ चुका है. देयर इज नो नीड टू गो बियॉन्ड दिस. समझ आ रही है बात? ये सब यूजलेस है क्योंकि ये ऑलरेडी तुम्हें पे मिल चुका है ऊपर. अगर तुम्हें Yeah, आई it's already पता है there. तो तुम्हें n by i भी पता है. तो द पॉइंट इज, अगर तुम ध्यान से देखोगे इस चीज़ को देखो, ये जो लेफ्ट पे लिखा है ना, ये नंबर्स क्या हो रहे हैं, अभी बढ़ रहे हैं, और ये नंबर्स क्या हो रहे हैं, यहाँ पे कम हो रहे हैं, राइट? Yeah. एक टाइम आएगा जब ये दोनों नंबर्स इक्वल हो जाएंगे, विच इज नथिंग बट द स्क्वायर रूट, इफ द नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है? Then only. Yeah. हाँ, इफ द नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर देन ओनली दे विल बिकम इक्वल. ठीक है? Yeah. Correct. 6 into 6. उसके बाद क्या होगा? रिपीटेशन चालू. So the point is, there is no need to go from 1 to n. You just need to check till 1 to square root of n. That's it. क्योंकि अगर तुम्हारे पास ये वाले नंबर्स आ गए तो you will obviously get these parts as well, correct? If you know I, you also know n by i. So there is no need to go beyond square root of n. Oh, yeah. Then the time complexity will also be less. Good. समझ आया बात? Let's say अभी तो 36 चलो perfect square था. Let's talk about any Yeah, number which is not a perfect square. ठीक है? So let's talk about 20. 20 के डिवाइजर्स लिखते हैं. 1 into 20, 2 into 10, 2 into 10, 4 into 4 5, into then क्या होगा? That's it. 5 into 4, 5 into फिर 4. 10 into 2, फिर 20 into 1. 20 into 1. अब 20 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बट इसका स्क्वायर रूट कितना होगा? अराउंड 4 point समथिंग कुछ होगा. सो द पॉइंट इज कि जस्ट Why 4 don't तक we- जाने की. Yeah, why don't we do like the floor? हाँ, वही मैं मतलब वही बोल रहा हूँ, फ्लोर तक ही जाने की जरूरत है. द पॉइंट इज वी जस्ट Yeah, नीड टू गो correct. टिल द फ्लोर. क्योंकि यहाँ पे देखो, उसके बाद तो फिर सारा चीज़ें रिपीट हो रहे हैं. ये दोनों रिपीट हुए, Yeah. Yeah. फिर ये और ये दोनों पेयर सेम है, फिर ये और ये पेयर सेम है, राइट? द पॉइंट इज देयर इज नो नीड टू गो Right. बियॉन्ड स्क्वायर रूट ऑफ n. Got the point? Yeah. So basically we Yeah. can update our code. Got it. We can update our code something like this. There is no need to go till n. You can go till square root of n. अब square root of n is a function, inbuilt function, ठीक है, in C++. It will give you square root of n. जैसे कि अगर तुम्हें देखना है
तो वो भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लो n हमारा 20 है तो प्रिंट SQRT ऑफ n, ठीक है। ये अभी के लिए कोड हटा देता है, देखते हैं क्या आ रहा है। Yeah. तो स्क्वायर रूट ऑफ n Hmm. दे देगा तुम्हें, ठीक है, स्क्वायर रूट, ठीक है। Okay. तो Yeah, बेसिकली द correct. पॉइंट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1, i शुड बी लेस देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n i प्लस हाँ प्लस, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज yeah. इफ n mod i is 0, it means Hmm. we should print i। तो फर्स्ट डिवाइजर क्या Yeah. हुआ, फर्स्ट डिवाइजर क्या हुआ It's i, it was I सेकेंड डिवाइजर क्या हुआ n बाय i, Divided by I. राइट। एज यू कैन सी ये i है, तो दिस इज n डिवाइडेड बाय i, करेक्ट। Correct. और वी नीड टू प्रिंट बोथ दीज Hmm. डिवाइजर्स, है ना, तो इन दोनों को प्रिंट कर दो एक एक करके। सी आउट फर्स्ट डिवाइजर, second. सेकेंड डिवाइजर। बट द पॉइंट इज इन दिस केस इफ n is 36, देखो क्या होगा। इफ n is 36, is the code clear? Yes. Yeah, it So is. let's see Yeah. what does print. Second, oh shit, Oh. spelling is as you can see there is a mistake here. The mistake is 6 is printed twice, है ना। Why it is happening? Oh. Because in case of Because 6, six times first divisor Yeah. and second divisor are Oh. both same. Yeah. So you just need to Yeah. make sure you need to print the second divisor only when first divisor is not equal to second divisor, Yeah, that's true. right? Mhm. Yeah, Yeah. correct. ठीक है। Yeah, there you go. नाउ देयर इज वन मोर ऑप्टिमाइजेशन। तो बेसिकली ये बार बार हम स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन चेक, मतलब ये क्यों लगा रहे हैं यहाँ पे, राइट। देयर कैन बी अ डिफरेंट वे टू राइट दिस। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर लूप काम कैसे करते हैं बेसिकली, फॉर एवरी आइटरेशन इट विल चेक दिस कंडीशन, राइट, वेदर दिस इज, इफ दिस इज ट्रू देन ओनली Yeah. it will come below. So the point is Yeah. every time you will call the square root of function, and the square root of function, square root of n, time complexity of square root of n is logarithmic of n. It uses binary search internally, ठीक है। Oh, okay. हाँ. तो बेसिकली ये जो टॉपिक है, मतलब ये डबल वैल्यू कैसे आएगी, तो वो एक टॉपिक होता है बाइनरी सर्च ऑन डबल, जो मैंने तुम्हें अभी नहीं पढ़ाया है बिकॉज ये थोड़ा सा एडवांस है। लेकिन जब तुम लोग ये बाइनरी सर्च के क्वेश्चंस कर लोगे तो मैं एक दिन तुम्हें ये बता दूंगा, ठीक है। जस्ट 10 मिनट्स में मैं तुम्हें बता दूंगा, कोई ज़्यादा बड़ा कुछ चीज़ नहीं है, ठीक है ना। तो बेसिकली बाइनरी सर्च ऑन डबल्स लगा के हम स्क्वायर रूट ऑफ एन भी निकाल सकते हैं। द पॉइंट इज वाई टू कॉल दिस फंक्शन वन अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन। इंस्टेड व्हाट यू कैन डू इज कि तुम्हें पता है कि आई should be less than or equal to square root of n, right? So let's square both Right. sides, so it will become I into I should be less than equal to n, isn't it? If I Hmm. square both sides, Mm. so let's write this na, why to write square root. Basically instead But of this I'll write this ki I times I should be less than n. but won't that be O of n? Why? What I'm checking is I into I should be less than n. So basically I'm going till Oh. square root of n Yeah. only, right? क्योंकि अगर तुम इसको ध्यान से चेक करो, if I square is less than equal to n, it actually implies कि I should be less than equal to square root of n, isn't it? Oh, हाँ, Same yeah, ही yeah, चीज़ है yeah, ना। yeah. Sorry, yeah. Yeah. सेम ही कंडीशन में मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया और कुछ नहीं किया, राइट। Yeah, yeah. Correct. ओके, तो अब इसको रन करते हैं कोड को। नाउ एज यू कैन सी वी आर गेटिंग ऑल द फैक्टर्स, राइट। Yeah. Yeah. व्हाट इज नाउ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस कोड, O of log Oh, log n. log n। log base 2n. Why log n? Because it's square root, right? So basically it will be big O of square root of n. Oh, Oh. didn't you say that? Square root of n? Yeah. You said that. No, I told you that square root of n, मतलब basically given n, square root of n कैलकुलेट करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log n होती है, square root of n निकालने की। Oh. Oh. So basically ये i तो रूट n तक जाएगा ना, i Oh. Okay. बेसिकली i will start from 1। अगर 36 है मान लो, अगर n 36 है तो i तुम्हारा 1 से लेके 6 तक जाएगा ना, तो बेसिकली रूट n तक जाएगा ना i। तो व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, big O of root n, Oh, root n. Yeah, yeah, yeah. right? So basically Yeah. we first discussed order of n approach, then we are able to optimize it to order of square root of n. So basically if given n, you need to know the divisors of n, you can calculate it in order of square root of n, something like this. Got it? Yeah. Yeah. So basically if somebody tells you कि instead of printing count the divisors of n, तो वो भी हम कर सकते हैं, right? यहाँ पे print करने की जगह count Yeah. प्लस प्लस कर देंगे, Yeah. right? Yeah. तो basically if somebody tell you कि tell me the count,
तो कुछ नहीं करना है उसमें, यहाँ पे काउंट प्लस प्लस कर दो फॉर फर्स्ट डिवाइजर, एंड इफ फर्स्ट एंड सेकंड आर नॉट सेम देन काउंट प्लस प्लस कर दो, उसके बाद काउंट को प्रिंट कर दो, राइट? Right. Basically we are able to count the divisors as well for a number, right? In how much time Yes. complexity? O of square root. Good. O of square root Yes, of n. also. So basically divisors count निकालना आ गया, right? So Yeah. now let's talk about primes. Prime number क्या होता है? Divisible by itself and one. There is no like divide. हाँ, so there are no divisors except Oh, the yeah. prime number is a number whose divisors are Except only one 1 and n. That's it. itself. अगर तुम इसके divisors निकालोगे तो बस यही दोनों लोग आएंगे और कुछ नहीं आएगा, ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल प्राइम नंबर्स का एग्जाम्पल बताओ. फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 2, 5, 3, 7, 7, 11, 13 एंड सो 30, ऑन. इन सब के 70. डिवाइजर्स देख लो. 2 को 1 और 2 ही डिवाइड करते हैं, 3 को 1 और 3 ही, Right. 5 को 1 और 5 ही, और 2 इज द ओनली इवन प्राइम, राइट? 2 इज द ओनली इवन प्राइम, ठीक है? और भी किसी को भी देख लो, 11 को देख लो, 1 और 11 ही डिवाइड करेंगे और कोई नहीं करेगा. वेट वेट वेट, जस्ट गिव मी अ मिनट. Yeah. ठीक है, अभी तक सब सही है? Huh. ओके. एक्चुअली हाँ, कुछ नहीं, चलो. तो बेसिकली अब एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. द प्रॉब्लम इज, Okay. प्राइम समझ में आ गया, राइट? प्राइम तो तुम लोग को पता ही था क्या होता है. तो प्रॉब्लम यह है कि गिवन एंड चेक वेदर एन इज प्राइम और नॉट. तो ये कैसे चेक करेंगे? तो हमें पता है कि प्राइम नंबर के डिवाइजर काउंट कितना होता है? 2 होता है. काउंट ऑफ डिवाइजर्स क्या होंगे प्राइम नंबर के? 2 होंगे. वी जस्ट नीड टू कैलकुलेट द काउंट ऑफ डिवाइजर्स. अगर इफ इट इज नॉट 2 then it is not prime. If it is 2 it is prime, right? Isn't it? Right. So what will be the time complexity to check whether a number is prime or not? O of square root of n. Good. O of square root of n. The basic approach क्या हो सकता था कि 2 से लेके n-1 तक चेक करते जाओ. अगर कोई नंबर डिवाइड करता है n को तो, राइट? इफ अ नंबर Yeah. डिवाइड्स n then it is not prime. पर उतना भी क्यों करना है? 2 से लेके स्क्वायर रूट ऑफ n तक जाओ ना, क्योंकि हमें पता है कि डिवाइजर सारे इस रेंज में आ जाएंगे, राइट? बेसिकली द सेम थिंग, हम डिवाइजर काउंट कर सकते हैं, है ना? And if the count of divisor is 2 then the number is prime. If it is not 2 then the number is not prime, right? So basically time complexity to check whether a number is prime or not is order of root n. Correct? Correct. ओके. तो इसका कोड तो आई गेस तुम लोग लिख ही लोगे, राइट? इसका कोड कुछ नहीं Right. करना है यहाँ पे, लास्ट में जस्ट चेक करना रहेगा. इफ काउंट इज ग्रेटर देन 2 देन इट इज नॉट प्राइम, ऐसा करके, राइट? Yeah, exactly. ओके. So now let's discuss one more problem. तो अभी डिवाइजर समझ में आ गया, राइट? काउंट ऑफ डिवाइजर्स निकालना आ गया. अभी प्रॉब्लम है गिवन एंड काउंट डिवाइजर फॉर एवरीबडी फ्रॉम 1 till n. बेसिकली व्हाट दे वांट इज कि अगर मान लो तुम्हें n दिया हुआ है 10, तो फ्रॉम 1 2, तो तुम्हें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब के लिए इनका डिवाइजर काउंट निकालना है. बेसिकली तुम एक एरे बनाओगे डिवाइजर काउंट नाम की, और इन सब के लिए तुम्हें सबके डिवाइजर काउंट निकालना है. जैसे 1 का डिवाइजर तो एक ही है, 2 के 2 हैं, 3 के 2 हैं, 4 के आई गेस 3 होंगे, 5 के 2 हैं, 6 के 4 होंगे आई गेस, 1 2 3 6, 7 के 2 हैं, 8 के 1 2 4 8, राइट? तो 4 होंगे. फिर 9 के 1 3 9 तो 3 होंगे. 10 के 1 2 5 10 तो 4 होंगे. बेसिकली ऐसे डिवाइजर काउंट का एरे बनाना है तुम्हें फॉर एवरीबडी. बेसिकली फॉर एवरीबडी यू नीड टू काउंट द डिवाइजर ऑफ इट, ठीक है? Okay. तो हाँ. थोड़ा इसके बारे में सोचो, ठीक है? Okay. थिंक अबाउट इट फॉर 2 minutes. प्रॉब्लम समझ में, प्रॉब्लम क्लियर है? Yeah, problem I understand. ओके.
Um, hmm. Yes, so any ideas? Um, I mean, the simplest idea is just like whatever code we have right now, we just run that Hmm. for So for every number, right? yeah. So the very basic approach, मतलब not very basic, but till now we have learned कि for a particular Yeah. I, we can calculate its divisor in order or square root of I, right? So basically, Equal to for man. I from 1 till n, what we will do is we'll just call a function which is nothing but count divisor Yeah, of I, है ना? और count divisor of I yeah, क्या है? that's what I was ये function ये है, thinking. right? तो Yeah. basically अगर हम count divisors from 1 to n dot cpp, so basically given n, right? First we will say let's create a array or a vector of size or Mm. whose name is count divisors of size let's say n Yeah. plus 1. n plus 1 का क्यों बनाया? क्योंकि इसके जो इंडेक्स होंगे वो ज़ीरो से होंगे ना, तो द पॉइंट इज़ कि हमने एक एक्स्ट्रा बना लिया ताकि जो इंडेक्स हैं वो 0 1 टिल n तक जाए. सिंस द साइज इज n प्लस 1 तो इंडेक्स जो है वो n तक जाएगा, तो वी विल बी स्टोरिंग द Right, right, इन्फॉर्मेशन एट 1 2 3 4 टिल n. ठीक है, जीरो वाला खाली पड़ा रहेगा, right. कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, Huh. so now the point is कि for every number, for every I from 1 Yeah. till n, what we will do is we will say count divisors of I is nothing but just call up somebody still just joined, uh, Arohi. Yeah. uh, Hello. कहाँ पे तुम लीव की थी मीटिंग, मतलब when what I was talking about. What? No, you're talking about the same thing. So I started writing this code, right? Yeah. Come, let's start. ओके. सो पहले आरिनी के साथ प्रॉब्लम होता था, अब आरोही के साथ प्रॉब्लम हो रहा है. आई मीन द कनेक्शन प्रॉब्लम. व्हाट्स गोइंग ऑन? No, it's not the connection problem. I don't know why. It's leaving the Google Meet is just leaving the meeting for me every time. आई डोंट नो व्हाई इट हैपेंड. ठीक है, Yeah. ठीक है. तो बेसिकली अब यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि काउंट डिवाइजर्स ऑफ आई इज नथिंग बट द फंक्शन विच इज लेट्स से डिवाइजर काउंट, maybe Yeah. divisor count of I, right? और ये फंक्शन को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? तो divisor count of What was int it? I और Yeah. मे बी int n. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है. हमें पता है हाउ टू काउंट डिवाइजर्स, राइट? Yeah. So basically we'll just run a loop from 1 I done. till square root of n, right? Yeah. Yeah. I into I should be less than n, I plus plus. If n mod I is 0, then we will say count plus plus, No. and if Campus. I is not equal to n by I, which is nothing but first divisor is not equal to second divisor, we will say Yeah. count plus plus, and then we will return this count, right? Yeah. Yeah. And after that we'll just, after doing this, we'll just print this array, right? So Yeah. for int I is equal to 1, I Done. less than till n I plus plus, see out count divisors of I. ठीक है? Yeah. So basically if n is 10, so we are getting the same thing, right? 1 2 2 3 2 4 2 4 3 4, Yeah. right? Yeah. The code is correct. Now what is the time complexity of this code? Of n time to root n. करेक्ट. तो बेसिकली एक्चुअल में हम कितने ऑपरेशंस कर रहे होंगे, तो यहाँ पे देखो कि फॉर एवरी आई वी आर रनिंग दिस diff काउंट ऑफ आई, और diff काउंटर ऑफ आई की वो क्या है कॉम्प्लेक्सिटी? स्क्वायर रूट ऑफ आई. n. नो, स्क्वायर रूट ऑफ आई, राइट? जो भी यहाँ पे आई प्रोवाइड करोगे वही है ना? Oh yeah, I. Yeah. Yeah. I. Basically for I from 1 to n you are doing root I operation.
तो टोटल ऑपरेशन कितने कर रहे होगे Yeah. बेसिकली √1 प्लस √2 प्लस √3 Yeah. √10। अब इसका एग्जैक्ट वैल्यू Yeah. तो आई डोंट थिंक सो कि मतलब निकाल भी सकते हैं बेसिकली, बट इसका एग्जैक्ट वैल्यू निकालने से अच्छा हम ऐसा बोल सकते हैं कि लेट्स से हम वर्स्ट केस निकाल रहे हैं, तो वर्स्ट केस क्या होगा कि सारे लोग √n है, वर्स्ट केस इफ सारे लोग हाँ. √n है तो क्या हो जाएगा, इट इज n टाइम्स √n, राइट। Yeah. दिस इज द वर्स्ट केस टाइम हाँ. कंप्लीट, मतलब वर्स्ट केस नहीं, दिस इज द अपर बाउंड, Worst case. नॉट वर्स्ट केस, दिस इज अपर बाउंड बेसिकली, कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकता ना। Yeah. तो बेसिकली इसके Yeah. आसपास ही होती है Right. ये वैल्यू, Yeah. ये वैल्यू जो है इज अराउंड दिस, जस्ट मतलब ऑब्वियसली स्मॉलर देन दिस वैल्यू बट अराउंड दिस वैल्यू, तो हम बोल देते हैं दिस इज नथिंग बट बिग O ऑफ n√n, ठीक है। Correct. हाँ. अभी द पॉइंट इज वी कैन स्टिल मतलब वी कैन एक्चुअली ऑप्टिमाइज दिस, वी कैन एक्चुअली ऑप्टिमाइज दिस अप्रोच, मतलब ये जो अप्रोच लिखा है ना इसको फिर से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अभी प्रॉब्लम ये हो रहा था ना कि जैसे Yeah. मान लो कि जब हमें 49 के डिवाइजर्स काउंट करने हैं, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम 2 पे चेक कर रहे हैं, फिर 3 पे भी चेक कर रहे हैं, फिर 4 पे भी चेक, मतलब 4 पे भी चेक कर रहे हैं, राइट, हम स्क्वायर रूट ऑफ n तक जाएंगे, है ना, Yeah. Correct. बेसिकली 1 से लेके स्क्वायर रूट ऑफ n तक जाएंगे 7 तक। तो Correct. द पॉइंट इज कि जब हमने 1 पे चेक किया हमें मिल गया, 2 पे चेक किया हमें नहीं मिला, 3 पे चेक किया नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, फिर मिल गया। तो द पॉइंट इज कि इतने सारे जो ऑपरेशन है ये हम वेस्ट कर रहे हैं, राइट, ये 2 पे भी चेक कर रहे हैं, 3 पे भी चेक कर रहे हैं। इससे अच्छा पता है एक और हाँ. तरीका होता है कि हम क्या कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ चेकिंग, देखो अभी हमने क्या किया कि फॉर ईच आई वी कैलकुलेटेड इट्स डिवाइजर काउंट, राइट। अब हम क्या बोलेंगे कि हाँ. इंस्टेड ऑफ चेकिंग डिवाइजर्स लेट्स आइट्रेट ओवर मल्टीपल्स, अभी ध्यान से सुनना मैं क्या कर रहा हूँ, लेट्स आइट्रेट ओवर मल्टीपल्स ऑफ आई। Yeah. कहने का ये मतलब है कि लेट्स से द सेम प्रॉब्लम कि यहीं पे आ जाओ, यहाँ पे, ठीक है, कि फ्रॉम 1 to 10 यू नीड टू काउंट दिस डिवाइजर काउंट फॉर एवरीबडी, ठीक है। हाँ. तो अब तुम इसको कैसे निकाल सकते हो वो देखो, मैंने फिर से बोला कि सेम चीज़ कि 1 to 10 तक बना लेते हैं, एक्टिव न्यू पेज, राइट, अभी 1 to 10 तक हमने बना लिया, अभी हमें इसका डिवाइजर काउंट एरे बनाना है, तो डिवाइजर काउंट है ना। पहले अप्रोच में हमने क्या किया था कि हमने फॉर एवरी आई वी कैलकुलेटेड इट्स डिवाइजर काउंट। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग द डिवाइजर लेट्स आइट्रेट ओवर मल्टीपल फॉर एवरी आई। अब मैं क्या करूँगा ध्यान से देखना, तो आई अगर 1 है, ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा कि 1 के मल्टीपल्स क्या क्या हैं जो कि 10 मतलब 10 से छोटे या कम है। 1 के मल्टीपल्स कौन कौन से हुए, 1 2 3 1, 4 2, टिल 3, 10, 4, 5, 6. राइट। Yeah. तो मैं क्या Yeah. करूँगा, अब मैं क्या कर रहा हूँ देखो, basically for each I, for I from 1 to n, I'm iterating over the multiples, iterating over multiples of I which are less than or equal to n। तो 1 के सारे हाँ. मल्टीपल्स कौन कौन से हुए, 1 से लेके 10 तक। One One इसका to 10, हाँ, yeah. तो इसका ये हम्म। मतलब हुआ ना कि इन सारे लोगों में 1 से लेके 10 तक एक एक डिवाइजर जो है वो 1 ने दिया होगा, राइट, एक एक कॉन्ट्रीब्यूशन 1 का होगा इन सब के डिवाइजर हाँ. काउंट में। अगर मैंने 10 का डिवाइजर काउंट निकाला तो वो क्या Yeah. होगा, 1 to 5 10 होगा, मतलब 4 होगा ना। Yeah. तो Yeah. एक तो ये 1 ने कंट्रीब्यूट Yeah. किया होगा, राइट। So that's why what I will Yeah. be doing Right. is कि while iterating over this multiple I'll do this कि count divisor of this multiple plus plus, ठीक है, मैं एक से इंक्रीमेंट कर दूंगा। तो अभी ये सब में 1 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 हो चुका है, ठीक है, जब मैंने 1 पे चेक किया। आई बात समझ में। हाँ. अब मैं सेम चीज़ हाँ. 2 पे करूँगा, तो 2 के सारे मल्टीपल्स बताओ, तो 2 के सारे मल्टीपल्स क्या होंगे, 2 4 2, 6 4, 8 10। 8, 5. तो इन सब पे मैं 1 1 ऐड कर दूंगा, तो ये क्या हो गया, ये 2 2 2 2 2, ठीक है। हाँ. अब मैं 3 के सारे मल्टीपल्स चेक करूंगा, 3 के सारे मल्टीपल्स क्या हुए, 3 6 9, है ना। 6 and 9. तो 3 हाँ. के 3 पे, फिर 6 पे, फिर 9 पे, हम्म. फिर 4 के मल्टीपल्स क्या हुए, 4 8, तो 4 पे 4, 8 पे, फिर 5 के मल्टीपल्स हुए 5 और 10 इन दोनों पे, 6 के मल्टीपल्स हुए 6 ओनली, तो 6 पे 1 ऐड कर दूंगा। समझ आ रही है ना बात। अभी हम फिर से मतलब Yeah, काउंट yeah. तो सही कर रहे हैं, राइट। 7 के Yeah, मल्टीपल्स yeah. क्या होंगे, 7 खुद होगा तो एक और ऐड कर दो, 8 के मल्टीपल्स में 8 खुद होगा तो एक और ऐड कर दो, फिर एक और ऐड कर दो, और फिर 10 के मल्टीपल में भी 10 खुद होगा एक मल्टीपल, तो एक और ऐड कर दो। Yeah. अब तुम लोग ध्यान से देखोगे तो हमें सेम एरे मिल चुका है, राइट। Yeah. 1 2 2 3 2 4 2 4 3 4, है ना। हाँ. सो द पॉइंट इज अभी हमने क्या किया, इंस्टेड ऑफ चेकिंग डिवाइजर फॉर ईच आई, हम ईच आई के मल्टीपल्स पे आइट्रेट करके उन सब पे काउंट डिवाइजर प्लस प्लस करते जा रहे हैं, ठीक है।
हाँ तो बेसिकली अभी हम क्या कर रहे हैं, देखो ध्यान से कि ये तो समझ में आ गया राइट, ये वाला कोड, है ना? तो Yes. हाँ वो समझ। अभी काउंट डिवाइजर्स फ्रॉम 1 to n ऑप्टिमाइज्ड, ये समवॉट ऑप्टिमाइज्ड है, हम देखेंगे कैसे, ठीक है? ओके। तो बेसिकली वही चीज़ कि n है हमारे पास, हम एक वेक्टर बना लेंगे काउंट डिवाइजर नाम का n+1 तक। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो फॉर एवरी आई वी आर आइट्रेटिंग ओवर इट्स मल्टीपल्स। तो मल्टीपल्स पे कैसे आइट्रेट कर सकते हैं? तो हम एक और लूप लगाएंगे राइट, वेयर j इज द Yeah. मल्टीपल, तो j विल स्टार्ट फ्रॉम i, राइट। राइट? क्योंकि मल्टीपल्स ऑफ i क्या क्या होंगे, i मल्टीपल्स ऑफ i क्या क्या होंगे फॉर अ पर्टिकुलर i, मल्टीपल्स क्या क्या होंगे, i 2i 3i 4i, यही होंगे ना? या अगर ये 2 के लिए निकाला था तो क्या है, ये 2 फिर 2 into 2 फिर 2 into 3, यही या तो है। एग्जैक्टली। बेसिकली j i से स्टार्ट होगा, j शुड बी लेस देन इक्वल टू n, और एवरी टाइम यू शुड इंक्रीमेंट j बाय i। देखो i, हाँ. उसके बाद i ऐड करो, फिर i ऐड करो, फिर i ऐड करो, राइट? Correct. एंड देन यू विल से काउंट डिवाइजर ऑफ j प्लस प्लस, सही है? एंड देन एट लास्ट यू विल जस्ट प्रिंट दिस array, ओके। राइट? हाँ तो 10 अगर डालेंगे तो सेम चीज़ आ गई, देखो ऊपर वाली। Yeah. अब ये बताओ इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? ये एक्चुअली काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसको याद रखना है। ये आइट्रेटिंग ओवर मल्टीपल्स, इसका कॉम्प्लेक्सिटी तुम लोग को क्या लग रहा है क्या होगा? बेसिकली हम लोग क्या करें, ध्यान से देखो। ओके, तो बेस ओवर हाँ, तो व्हाट विल बी द टाइम प्लस कॉम्प्लेक्सिटी? ध्यान से देखो इस कोड को। एन प्लस ओ वेट ओवर नहीं, कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं हम, कि व्हाट आर द नंबर ऑफ ऑपरेशंस वी आर डूइंग, राइट? या तो ध्यान से देखोगे तो क्या हो रहा है, फॉर ईच आई फ्रॉम 1 to n आई एम आइट्रेटिंग ओवर इट्स मल्टीपल्स, राइट? या फॉर ईच या यू आई आर फ्रॉम या 1 to n आई एम iterating over its multiples which are less than n। तो अभी मुझे ये बताओ कि फॉर ईच आई, फॉर अ पर्टिकुलर आई, ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर आई कितने मल्टीपल्स होंगे उसके जो n से छोटे होंगे? बेसिकली एन देखो, अगर n 10 होता तो 3 के कितने मल्टीपल्स आते, 3 आता, 6 आता, 9 आता, राइट? तो बेसिकली तुमने क्या राइट। किया कि अगर तुम्हारे पास एक 10 साइज का लेंथ है, उसको तुमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो, ठीक है? 3 आया, फिर 6 आया, फिर 9 आया, राइट? ओके। बेसिकली द पॉइंट इज कि अगर फॉर अ पर्टिकुलर i, let's say the number of multiples of i will be n by i, राइट? किसी भी i के लिए देख लो, फॉर एग्जाम्पल अगर n इज इक्वल टू 10 है और i इज इक्वल टू 2 है, तो नंबर ऑफ मल्टीपल्स क्या होंगे, 2 4 6 8 10, कितने मल्टीपल्स हुए, ये 5 हुए, विच इज 10/2। तो नंबर ऑफ मल्टीपल्स इतने ही आएंगे, विच इज n बाई आई। एन डिवाइडेड बाय 2 या एन डिवाइडेड बाय आई। क्योंकि तुम इसको विजुअलाइज ऐसे कर सकते हो ना, कि अगर तुम्हारे पास n साइज का एक लेंथ है और तुम्हारे पास एक पर्टिकुलर आई है, तो तुम्हें आई पार्ट्स में इसको काटना है, तो कितने पार्ट्स कट पाएंगे, n ओह बाई हाँ। आई, n बाई आई पार्ट्स ही तो कट पाएंगे, या राइट? एन बाय आई या तो बेसिकली द पॉइंट इज कि फॉर ईच आई आई एम आइट्रेटिंग ओवर इट्स मल्टीपल जिसका काउंट है n बाई आई, करेक्ट? करेक्ट। तो बेसिकली फॉर ईच आई, लेट्स से फॉर वन के लिए कितने मल्टीपल्स आएंगे, n/1, है ना? टू के मल्टीपल्स कितने आएंगे, n/2। 3 के मल्टीपल्स कितने आएंगे, n/3। एन फिर बाय 3। 4, ऐसे करते करते n/n, राइट? दिस इज द टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस आई एम डूइंग, इजंट इट? Correct. Yes. अब ये इसका समेशन क्या होता है बताओ, मतलब एग्जैक्ट तो चलो, इसका समेशन ऐसे सोच सकते हैं कि अच्छा यहाँ तक समझ में आ गया ना? हाँ हाँ। Yeah. ओके, तो इसका कुछ आइडिया है क्या समेशन होता है? ये बेसिकली अगर तुम यहाँ से n कॉमन निकाल लोगे ना, तो ये क्या बन जाएगा, 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 till 1/n, and if you look closely this is what we call harmonic series। Harmonic. I mean तुमने थोड़ा बहुत ये सब पढ़ा होगा ना, अरिथमेटिक सीरीज,
इन या योर वो हाँ क्लास वो फिफ्थ पढ़ा सिक्स, हाँ हाँ अरिथमेटिक सीरीज, ज्योमेट्रिक सीरीज। तो हाँ वैसे ही हाँ जब होता है। हम अरिथमेटिक सीरीज को उल्टा कर देते हैं तो ये एक हार्मोनिक सीरीज बन जाता है ना, 1/2 1/3। ओ अभी हाँ याद नहीं है तो ओके कोई बात नहीं, तुम ऐसा समझ सकते हो कि इसको हार्मोनिक सीरीज बोलते हैं, ठीक है। हाँ हाँ ओके हाँ तो ये जो हार्मोनिक सीरीज है ना फ्रॉम 1 to n, इसका सम जो है वो अराउंड, मतलब अराउंड जो है, जो ये बस अगर मैं इस पूरे का सम जो है वो लेस देन और इक्वल टू log n होता है, हम्म ठीक है। तो बेसिकली ओह ओवरऑल द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बिकम n log n। अब अगर तुम्हें इसको प्रूव करना है तो वो भी हम प्रूव कर सकते हैं, देखो ध्यान से देखना, ठीक है। तो wait हम्म, नहीं नहीं, how अभी will इसको it be भूल जाओ। n log okay n log n कैसे होगा, ठीक है वो बताता हूँ। जो ये log n I get that is the n तो oh n because I'm यहाँ पे writing है it ना, n n पहले से बाहर निकाल लिया था yeah ना I मैंने, understand now yeah या ठीक है। ओके अभी yeah तुम इसका प्रूफ देखो, प्रूफ मैंने क्या क्लेम किया okay कि ये जो चीज़ है ना ये n log n से छोटा ही होगा, ठीक है। मैंने ये क्लेम कर रहा हूँ मैं, ठीक है। yeah अब हम इसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं, इसको ध्यान से देखो। मान लो कि n16 है, मान लो कि n16 है ना। तो बेसिकली द पॉइंट इज n/1 तो n/1 ही है, n/2 n/2 है, मैं n/3 को n/2 लिख रहा हूँ। तो मुझे ये बताओ वैल्यू बड़ी कि कम हो गई, n/3 और n/2 में कौन बड़ा है, n n/2 by बड़ा है। 2 तो बेसिकली मैं और ज़्यादा ऑपरेशंस काउंट कर रहा हूँ, राइट। yeah बेसिकली मैं और हाँ ज़्यादा ही वर्स्ट लिख रहा हूँ, तो मैंने बोला ठीक है मैं लिख रहा हूँ वर्स्ट, इसकी जगह मैंने n/2 लिख दिया। अब n/4 मैंने लिखा वैसा का वैसा, n/5 की जगह मैं हाँ n/4 ही लिख रहा हूँ, तो ऑब्वियसली बड़ी वैल्यू लिख रहा हूँ, ओके राइट मैं। हाँ n/6 की जगह भी हाँ मैं n/4 ही लिख रहा हूँ, n/7 की जगह भी मैं n/4 ही लिख रहा हूँ, ठीक है ना। अभी बस हाँ तुम देखते जाओ। okay फिर इसके बाद okay क्या आएगा n/8, तो n/8 की जगह मैं n/8 ही लिख रहा हूँ। फिर n/8 से n/16 तक मैं n/8 ही लिखता जा रहा हूँ, ठीक है, जब तक 16 नहीं आ रहा है। अब अगर तुम ओके ध्यान से देखोगे, ठीक है ना, तो मैंने n/16 तक था, n अगर 16 है तो मैंने इन सब चीज़ों को इससे रिप्लेस कर दिया, मतलब अ, जो n/1 था वो तो n/1 ही रहा, n/2 को n/2, हाँ n/3 को n/2 लिख दिया क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है। तो ऑब्वियसली मैं वर्स्ट केस मतलब और ज़्यादा ही काउंट करूँगा, राइट। तो ये जो वैल्यू आ रही है, right अगर ये टोटल ऑपरेशन 1 है और ये टोटल ऑपरेशन 2 है, तो ऑब्वियसली 1 जो है वो ग्रेटर देन 2 होगा, राइट, ये तो मानते हो ना। right ओके, तो अभी अभी 1 पे फोकस करो, ठीक है। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो अप टू n तक अगर कोई भी पर्टिकुलर n है, तो कितने पावर्स ऑफ 2 ये देखो यहाँ पे देखो, नीचे से मैं सिर्फ पावर्स ऑफ 2 ही लिख रहा हूँ। तो कितने पावर्स ऑफ 2 आ हाँ जाएंगे अप टू n, अगर n है कोई भी पर्टिकुलर, वन अगर लेट्स से n16 होता तो कितने पावर्स ऑफ 2 आते हैं, yeah 1 आता, 2 आता, 4 आता, 8 आता, 16 4 आता। the बेसिकली yeah हम हर बार 2 से मल्टीप्लीकेशन करते जा रहे हैं टिल वी रीच n। तो बेसिकली 2 टू द हाँ पावर k, 2 टू द पावर k विल बिकम n, तो k कितना हो जाएगा log n, log n है ना। log n जो है पावर्स आ सकते हैं, अगर तुम्हें, या oh है ना, अगर अगर n16 है तो log कितना होगा, log n कितना होगा 4, 2 टू द पावर 4। 4 वो तो आता बेसिकली है log हाँ n प्लस 1 पावर्स आ सकते हैं, ठीक है, टू बी एग्जैक्ट 1 2 4 y- 8 16, तो 5 yeah पावर्स आए ना। yeah हाँ तो बेसिकली अब देखो ध्यान से, अभी तुम अगर ये इस वाले ऑपरेशन को ये वाले चीज़ को देखना, ठीक है। अब ये चीज़ तो हाँ n है, राइट। इन दोनों को अगर मैं क्लब कर दूंगा तो ये भी n है। हाँ इन चार लोग को मैं क्लब कर दूंगा तो n/4 चार टाइम्स क्या हो जाएगा, ये भी n हो जाएगा, हाँ है ना। n/4 इंटू 4, ये n/4 को 4 बार ऐड करो ना तुम, तो क्या हो जाएगा, n/4 इंटू 4 हो जाएगा, 4 और 4 कट जाएंगे। हाँ सिमिलरली ये n/8 8 टाइम्स आएगा तो ये भी n है। और सिमिलरली n/16 को भी मैं n ही मान ले रहा हूँ, चलो तुम्हारे तुम्हारे लिए, ठीक है। तो ध्यान से देखोगे तो n कितनी बार मिलेंगे हमें, log n बार, जितने अलग अलग हाँ पावर्स मिलेंगे। बेसिकली अगर n log n बार मिल रहे हैं तो इन सबको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, n log n। एंड लॉग एन एंड दिस इज द ऑपरेशंस इन 1, जो कि ऑब्वियसली ज़्यादा हैं ऑपरेशंस इन 2 के। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये जो वैल्यू है, ये जो सम ऑफ हार्मोनिक सीरीज होता है वो n log n होता है, मतलब n log n से कम ही होता है। हाँ दैट्स व्हाई इट इज ऑर्डर ऑफ n log n, समझ गए। हाँ तो पहले वाला जो अप्रोच था जो हमने पहले लिखा था वो कितना था, ये वाला जो अप्रोच था कि फॉर एवरी नंबर वी आर काउंटिंग द डिवाइजर्स, राइट, ये वाला, ये इसका अप्रोच का कॉम्प्लेक्सिटी क्या था, ऑर्डर ऑफ n इंटू स्क्वायर रूट ऑफ n, क्योंकि फॉर एवरी आई हम स्क्वायर रूट ऑफ आई ऑपरेशन कर रहे थे ना। हाँ हाँ तो ये ऑर्डर ऑफ n सही इंटू बात स्क्वायर रूट ऑफ n था।
बट हमने सेम प्रॉब्लम को सॉल्व किया बाय आइट्रेटिंग ओवर मल्टीपल्स, ठीक है। हाँ, और इसका कॉम्प्लेक्सिटी yes. क्या है, ऑर्डर ऑफ n इंटू लॉग ऑफ n। Yeah. तो कौन सा ज़्यादा अच्छा है, n स्क्वायर रूट ऑफ n या ऑर्डर ऑफ n लॉग n? एक जगह n रूट n है, एक जगह n लॉग n है, कौन सा ज़्यादा अच्छा है? And log n log n ऑब्वियसली, n. मतलब ये इससे Log. बड़ा है तो ये ज़्यादा अच्छा हुआ ना, ये कम N ऑपरेशन log थ्रू है, n. हाँ. राइट। कोई भी n पकड़ लो, n अगर 10⁵ है तो n रूट n कितना आएगा, 10⁵ इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 10⁵, और ये कितना आएगा, हाँ. 10⁵ इंटू लॉग ऑफ 10⁵। तो स्क्वायर रूट ऑफ Yeah. 10⁵ को अगर हम 10⁵2 भी लिख लें तो ये टोटल कितना हो गया, 10⁵7। और ये कितना हो जाएगा, हाँ. Right. ये कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ 10⁵ कितना होगा, 15 के अराउंड। ये हो जाएगा 15 इंटू 10⁵। तो स्टिल ये कितना छोटा है ना इससे, राइट। तो हाँ. बेसिकली दैट्स हाउ Yeah, छोड़ वी दिया। ऑप्टिमाइज इट, है ना, हाँ। n log n। तो बेसिकली अभी Right. हम कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, द प्रॉब्लम वाज कि फॉर ईच आई गिवन n, फॉर ईच आई काउंट द नंबर ऑफ डिवाइजर्स इन इट, राइट। ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया हमने इन n log n, हाँ। Yes. समझ गए? हाँ. ओके, तो अब मैं अगर तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अभी तक सब चीज़ समझ आ रहा है, राइट? Yes. अभी ये जो अप्रोच हमने लिखा है इसको थोड़ा ध्यान से देखो तो 1 मिनट के लिए, मतलब इसको ऐसे भूलना नहीं है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखो स्क्रीन पे, Okay. सब हाँ. चीज़ समझ आ रहा है कि नहीं। 30 सेकेंड्स तक स्क्रीन देखो, उसके बाद मैं कोड दिखा दूंगा फिर से, ठीक है। Okay. अब एक बार कोड को देखो कि हमने किया क्या। ठीक है, कोई डाउट? No. राइट, n log n समझ में आया कि नहीं? हाँ। Yes. ओके, And log n. द Yeah. पॉइंट इज कि फॉर, अगर मैं तुमसे पूछता हूँ कि सॉल्व दिस प्रॉब्लम कि फॉर गिवन n, फॉर एवरी n फ्रॉम 1 to n काउंट इट्स डिवाइजर, तो वो कर लेंगे, राइट। तो नाउ टेल मी वन थिंग कि ओके, नाउ टेल मी वन थिंग कि अगर प्रॉब्लम ये आता है गिवन n, चेक प्रिंट all primes from 1 to n, print all primes from 1 to n। तो क्या हम ये वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं क्या? हाँ, it would be the similar. Um, अच्छा 1 मिनट रुको, पहले ये रिवाइज करवाने दो तुम लोग को कि ये जो चीज़ होती है ना, ये जो चीज़ देखो, जब भी तुम ये वाली चीज़ देखोगे, इसका इसका समेशन लगभग कितना होता है, n log n। इसको तुम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हो, ये जो सम ऑफ हार्मोनिक सीरीज होता है ना, बेसिकली n प्लस n/2 प्लस n/3 अप टू n/n, इसमें से जब तो हम n कॉमन निकाल लेंगे तो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 टिल 1/n बचेगा, और ये जो सम होता है वो log n होता है, ये बस याद रख लेना। अगर मैंने जो अभी डिराइव किया वो अगर तुम्हें ध्यान भी ना रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम बस इस चीज़ को याद रख लेना कि ये जो सम ऑफ हार्मोनिक सीरीज होता है वो log n के आसपास होता है, एंड दैट्स व्हाई द टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बिकम n log n, ठीक है। ये हार्मोनिक सीरीज का, Yeah. हार्मोनिक सीरीज क्या होता है कि 1 2 3 4 जब टिल n तक जाएंगे बट सब लोग रेसिप्रोकल में रहेंगे, राइट, 1/1 1/2, ठीक है।
तो अब अगर मैं तुमसे ये वाला क्वेश्चन पूछूंगा, गिवन n प्रिंट ऑल प्राइम्स फ्रॉम 1 to n, तो कैन वी सॉल्व दिस? Yeah. एंड इफ yes, what is the best time complexity we can achieve? तो बताओ कैसे करेंगे? Um. वेरी ब्रूट फोर्स वे क्या हो सकता है कि फॉर i from 1 You to just n, go for every single one. Just go You from check one if to it's one prime. step. Like Yeah. you create a new function. That's it. हाँ करेक्ट, तो So what will be the time yeah. complexity of that approach? O of n. Square root n. What O of? O of I n times square root of n. हाँ करेक्ट, because for checking each one whether it is prime or not, it takes square root of n time. Yeah. तो can we do something similar than this thing? मतलब यहाँ पे तुमने क्या किया था, काउंट ऑफ डिवाइजर्स किए थे ना? अगर तुम काउंट ऑफ डिवाइजर से निकाल लो, एंड इफ द काउंट ऑफ डिवाइजर इज इक्वल टू 2, then it is a prime, right? Can't we Yeah. say this? Yeah. Basically using this approach जो हमने n log n वाली की थी, वो भी तो कर सकते हैं Yes. ना? We can हाँ also do कर the same सकते thing, हैं. right? What I'll Right. say Yeah. कि count divisors for everybody, ठीक है? Count divisors हाँ. for everybody. तो ये चीज़ कितने टाइम में कर लोगे तुम लोग? n log n में, ये अभी हमने देखी Yeah. थी, right? And then to check whether a number is prime or not, तो if count divisor of I is comparable with 2, then it is a prime, right? उसको प्रिंट कर दोगे लास्ट में, है ना? Yeah, that's what So we the decided. हाँ, so the best we can do is n log n, correct? Correct. टू चेक, तो अब अगर तुमसे कोई पूछता है कि मैंने तुम्हें n दे दिया है, यू नीड टू प्रिंट ऑल द प्राइम्स फ्रॉम 1 to n, ठीक है? Yeah. तो तुम n log n में सबके काउंट डिवाइजर निकाल लोगे और तुम बता दोगे, राइट? तो n log n में कर सकते हैं, राइट? Yeah. Okay, so there is one more algorithm from which, with the help of which you can solve this problem. जो ये problem है ना, given n, Oh. हाँ. print all primes from 1 to n, ये जो problem है, basically there is a algorithm which is called sieve of Eratosthenes. What? Eratosthenes, बस sieve याद रखना है, ये नाम छोड़ दो, ठीक है? तो बस sieve याद रखो, ठीक है? Basically there is an algorithm called sieve. उससे क्या होता है कि अगर तुम्हारे पास यही सेम प्रॉब्लम आ जाए ना, कि वो बेसिकली तुम्हें एक एरे बना के दे देता है, और उस एरे में ऐसा समझो कि फॉर ईच आई फ्रॉम 1 to n, लेट्स से ये 1 है, ये 2, ये 0 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, टिल n है, तो ये सीव जो है ये यहाँ पे 0 1 0 1 भर देगा। मतलब अगर कोई बंदा प्राइम है तो वहाँ पे 1 भर देगा, अदरवाइज 0 भर देगा, ठीक है? और ये तुम्हें ये वाला एरे ला के दे देगा। बेसिकली 4 पे 0 आएगा, 5 पे 1 आएगा, है ना? ऐसे करते करते n पे कुछ आएगा। अगर कोई नंबर प्राइम है तो सीव पे ये वैल्यू 1 हो जाएगा, मतलब ये एरे पे, ये बेसिकली एक एरे है, कुछ नहीं है, 0 1 का। और अगर कोई एलिमेंट प्राइम नहीं है तो उस पर वैल्यू 0 रहेगा। तो ये सीव का काम है ये एरे बनाना तुम्हारे लिए, और सीव ये एरे बना देता है। द नॉर्मल सीव इम्प्लीमेंटेशन एक्चुअली यूजेस n log of n, राइट? Oh. अभी हमारे पास एक सोल्यूशन क्या था, n log n वाला, राइट? बट वी कैन Right. एक्चुअली विद द हेल्प ऑफ सीव कैन डू दिस प्रोसेस इन n log of log n। Fast. मतलब ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, ऑलमोस्ट लीनियर होता है Yeah. ये ऑलमोस्ट लीनियर है। Much faster. क्योंकि अगर तुम n को बहुत बड़ा वैल्यू भी ले लोगे ना, n अगर 10 to the power 8 भी हो गया मान लो, तो log of n क्या होगा? log of 10 to the power 8, Log. Yeah. तो log of 10 to the power 8 ये 8 आगे आ जाएगा, और log of 10 ये हो जाएगा, और log of 10 with base 2 अराउंड 3.3 कुछ मान लो, तो ये Yeah. log of 2, और 8 इंटू 3.3 कुछ मान लो 27 मान लो, चलो 27. Yeah. 26 कुछ, और इसका log फिर क्या हो जाएगा? बेसिकली अराउंड 5 पॉइंट समथिंग, मतलब 5 भी नहीं होगा, Yeah. 4 पॉइंट समथिंग कुछ, तो 5 मान लो चलो। बेसिकली द पॉइंट इज इफ n इज 10 to the power 8, तो n इंटू log of n कितना हो जाएगा? 5 इंटू 10 to the power 8, राइट? जस्ट 5 टाइम्स। Yeah. द पॉइंट इज ये भी चल जाएगा, है ना? हाँ. अराउंड 10 to the power 8 ऑपरेशंस 1 सेकंड में हो जाते हैं, तो अगर 2-3 सेकंड भी टाइमिंग है ना तो इतना चल जाता है, ठीक है? 2-3 सेकंड टाइमिंग। Right. द पॉइंट इज कि यूजिंग सीव यू कैन एक्चुअली ऑप्टिमाइज दिस प्रोसेस। जो हम n log n में कर रहे थे उसको हम n log of log n में कर सकते हैं। तो अब देखते हैं क्विकली कैसे, हाउ एक्चुअली सीव वर्क, ठीक है?
अब ध्यान से देखो सीव Okay. काम कैसे करता है. सीव क्या करेगा, तो बेसिकली Okay. हाउ सीव वर्क्स, राइट, दैट्स व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग.